पहला प्रॉब्लम कहता है कि सर्कल हैज़ रेडियस 5 यूनिट्स एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस ते ठीक है मतलब रेडियस देता ਤੁਹਾਨੂੰ 5 यूनिट ਤੇ सेंटर लाई करदा है x एक्सिस ते सेंटर ऑन x axis and the circle is passing through the point 2, 3 ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ one of the ways can be ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ let the circle be ਹੈ ਨਾ x minus a square y minus b square equal to r square center radius form ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ 2gx plus 2fy plus c equal to 0 ਠੀਕ ਹੈ depending upon the problem ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ए बी ਤੇ r ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਨਨੋਨ ਹੈ g f ਤੇ c तो somehow ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ठीक है तो ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ अननोन ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ 5 यूनिट्स तो r डायरेक्टली गिवन है लेट्स बिगिन विद दैट तो r देता है सेंटर कितना बेटे a, b एंड इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस सो देयरफॉर दिस b इज 0 तो b भी देता है तो वेरी कन्वीनियंट तो r 5 हो गया तो b 0 हो गया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल will be x minus a square y minus 0 square equal to r square which is 25 ठीक है ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ a और ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਾਡਾ that is passing from the point 2, 3 तो x2 ਤੇ y3 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ so 2 minus a square and y ਹੋ ਗਿਆ 3 that is 9 is equal to 25 so 2 minus a square is equal to 16 so 2 minus a is either 4 or minus 4 therefore a will be either minus 2 or 6 तो I guess a आ गया b ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ r ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪੋਸੀਬਲ ਸਰਕਲ ਹੋਣੇ ਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਦਿਸ these two conditions is that clear ਬੇਟੇ तो ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GFC ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ x square plus y square 2gx plus 2fy ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -g ਤੇ -f ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਂਗ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਬੈਕ ਪੜਨਾ ਉਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇਤੀ ठीक है तो f 0 हो गया तो आ उड़ गया और रेडियस कितना होता पुत्र रेडियस है 5 दैट इज g square plus f square minus c the under root is 5 therefore that is 25 f is already 0 ठीक है तो सेकंड कंडीशन आ गई g square minus c is 25 और थर्ड अगर 2, 3 पॉइंट है सर्कल ते लाई कर दे मतलब सर्कल दी इक्वेशन नु की करूँगा सैटिस्फाई करूँगा तो इत्थे x2 y3 पुट कर दो सो दैट इज 4 plus 9 and plus 4g plus c equal to 0 so 4g plus c plus 13 equal to 0 this is the second equation in terms of g and c तो एक आ एक दूजी तो ऐदा करो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਹਨ तो मतलब या c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ तो आई गेस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ g ਤੇ c ਕਰ ਲੋਗੇ f ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ठीक है सो ऐदा तुसी सॉल्व कर सकते बाकी सर्कल च जोमैट्री बड़ी हैल्प करती है अगे अगे क्वेश्चन कराए कई जिस बिल्कुल जोमैट्री के नाल ही सॉल्व हो जाएंगे सो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलांगे जनरल मैथड तुहानूं दसदा कि अगर तुसी दो इक्वेशन लैंदे हो तो इन्हां ते कंडीशनस जिहड़ियां गिवन है अप्लाई करके आंसर आ ही जाएगा जिवें आ क्वेश्चन करते हैं कहंदा सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स ठीक है 1, -2 and 4, -3 and whose center is lying on this line ठीक है सेंटर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ somewhere ਇੱਥੇ लाई ਕਰਦਾ तो ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ तो अगेन ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ठीक है मेथड 1 तो let the equation of circle with this ठीक है मान लिया सर्कल की इक्वेशन आया
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਅਗਰ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ -g ਤੇ -f, तो बेसिकली जिदा मैं क्या 3 कंडीशन दे देगा, वो देती ने। तो पहली कंडीशन सेंटर -g -f एस लाइन ते लाई कर रहा है, मतलब आप पॉइंट एदी इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा। सो देयर फोर एक्स की वैल्यू -g इत्थे, सो -3g -4f प्लस या -7, ठीक है, वेट, f इज इक्वल टू 7 ले लो, तो एक इक्वेशन आ गई। दूजी तीजी इत्थों आ जानी है ना, दूजी तीजी कितना हो गया, तो वो कहता कि आ वाला पॉइंट सर्कल ते लाई करता है, मतलब आ पॉइंट एस सर्कल की इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा। सो इतने x1 y -2, हाँ जी कितना आ गया, a1 + 4 + 2g - 4f + c = 0। तो जी एफ सी एक इक्वेशन आ गई पुत्र, जी ते एफ ते दूजी आ गई, तीजी इत्थों हो गई, जो आ वाला पॉइंट है ये भी सर्कल की इक्वेशन इतने सैटिस्फाई करेगा, ठीक है इतने। तो इदा ही सिमिलरली विल गेट थर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जी एफ एंड सी, 3 इक्वेशन 3 अननोन आप सॉल्व कर लाँगे, ठीक है। बट यदा एक ईजी मैथड की है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना पुत्र, ये हले तुहानू जी एफ सी लिए सॉल्व करना है। तो एक कन्वीनियंट मैथड की है कि अगर आप कुछ ना करिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी 10th की ला दी है ना, वो किदा कि आ 2 पॉइंट आ होगी कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट चों अगर आप एक लाइन परपेंडिकुलर खिंचीए, वो हमेशा सेंटर चो पास करेगी, और आ जी लाइन है ये भी सेंटर चो पास कर दी, गिवन है। देयरफॉर आ जो पॉइंट है इन्होंने दोनों सॉल्व करके जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट द सेंटर। सेंटर आ गया तो सेंटर ते एन एच डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, रेडियस आ जाएगा। तो ये आसान है, तो दैट इज़ एलिगेंट। एंड सैकेंड मैथड हो चुकी है कि आ लाइन की क्वेश्चन कर लो, तो वो कि कटांगे मिड तो लाइन परपेंडिकुलर दैट यू कैन कैलकुलेट नाउ। मिड पॉइंट कितना है 4 + 1 5/2, कॉमा हाँ जी -2 -3 -5/2 आ पॉइंट आ गया। तो एस लाइन की स्लोप कर लो है ना, m1, हाँ जी y2 - y1 -3 -2 on x2 - x1 दैट इज़ -1/3। तो यदि स्लोप -1/3 साड़ी जी लाइन आ वाली m2 कितनी आ जाएगी 3। तो यदि स्लोप आ गई बेटे, ये उपर एक पॉइंट आ गया आ वाला, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी दैट इज़ y -5/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x - 5/2। सो हुण आ लाइन पता लग गई पुत्र है ना, और आ लाइन ऑलरेडी पता है 3x + 4y = 7। इन्होंने दोनों सॉल्व करके साढ़े को सेंटर आ जाएगा, सेंटर के कोआर्डिनेट आ जाएंगे पुत्र, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, या ये वो रेडियस आ जाएगा, सेंटर आ गया रेडियस आ गया, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आ काफ़ी इजी मेथड है। और सिमिलरली अगर ऐदा हो ना कि अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट जो पास करता सर्कल, दैट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेट्स से पासिंग थ्रू 0 0 2, 1 एंड 4, 5 लेट्स से। तो ये भी ऐदा ही, या तो तुसी सर्कल की इक्वेशन आ मान लो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हुण तीनों ही पॉइंट जोड़े सर्कल ते लाई करते, मतलब ये भी सैटिस्फाई करेगा, दूजा भी करेगा, तीजा भी। वो तो थोड़े को GFC 3 इक्वेशन आ जानी है, उन्होंने सॉल्व कर लो, GFC आ जाएगा। बट जिदा मैं हुणे दस्सिया बैटर की है कि तुसी ऐदा कर लो कि आ 0 0, दिस इज़ 2, 1, लेट्स से दिस इज़ 4, 5, ठीक है। आई गेस दिस इज मैथड नंबर 1, वो क्लियर है। एक को 10th तुसी पढ़ते होंगे सी कि मान लो सेंटर A, B है, तो अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल ते है तो डिस्टेंस A, B का तीनों पॉइंटा तो सेम होएगा, डिस्टेंस इक्वेट कर दो उन्ना भी आ जाएगा है ना। ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना है √(a - 0²), हाँ जी ਇਹਦਾ डिस्टेंस है तो a - 2² + b - 1² √ कट गया, ठीक है। इदा ही आ वाला डिस्टेंस ये बराबर कर दो, सो a - 5² + a - 4² एंड b - 5²।
ਸੋ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਕੁਆਇਰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 4 ਮਾਈਨਸ 2a 4a ਐਂਡ b ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2b। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ a b ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4a ਪਲੱਸ 2b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ, यदि ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਹੈਵ another equation in a and b like that, और ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ x ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ y ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਸਕੁਆਇਰ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ a b r ਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਆਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੌਰਡ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੌਰਡ ਬਣੀ, ਕੌਰਡ ਦੇ ਮਿਡ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। तो जितना मैं पिछले क्वेश्चन च कराया, एना तो मिड पॉइंट आ जाएगा है ना, दैट इज़ 1,1/2। ठीक है, और इस लाइन की स्लोप आ गई थोड़े को m1 1 माइनस 0.2 माइनस 0 ये स्लोप आ गई, और ये स्लोप कितनी आ जाएगी m डैश माइनस 2। तो इस लाइन की बेटे स्लोप आ गई। अब पॉइंट पता जो लाइन पास कर दे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एदे सिमिलरली आ दूजी कॉर्ड है ना, आ कॉर्ड का इत्थे कितने मिड पॉइंट होएगा। ठीक है, और मिड ये परपेंडिकुलर जावांगे तो भी सेंटर चो पास करेगी। तो सिमिलरली ऐदा ही इधर लावांगे सारी कहानी, तो इस ग्रीन लाइन की भी इक्वेशन आ जाएगी यदि। तो आ लाइन पता है तो आ पता है, सॉल्व करके साढ़े को सेंटर आ जाएगा। मतलब बेसिकली आप सिर्फ दो लाइनों की इक्वेशन कढ़नी, वो तो सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो सेंटर चो ये डिस्टेंस काट लो, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, सो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है ये। बाकी लेट्स डू फ्यू मोर। ओके, कुछ जनरल के क्वेश्चन कर लेने। वेरी कॉमन वन JEE 19 च आया दोनों। ये होंगे कि जोमैट्रिकल प्रॉब्लम है, जिदा कहता है कि सर्कल है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। हले आ स्टेटमेंट में भूल जाओ। अगर एक ट्रायंगल नू सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब अगर ट्रायंगल की लेंथ L है, चलो आले दुआले आप घुमा सकते हैं, बट लेंथ वाइज इक्वल ट्रायंगल गिवन सर्कल इंस्क्राइब होएगी। ठीक है, तो मतलब लेंथ सेम रहेगी, यू कैन रोटेट इट, अदरवाइज देयर बी इनफिनिट ट्रायंगल्स, बट लेंथ L ही रहेगी। हुण कहता है कि अगर मान लो सर्कल का रेडियस R है, तो आप लेंथ L कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट बाय ज्योमेट्री। रेडियस R हो गया। ठीक है, अगेन आ कॉर्ड है, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे तो मिड ते जाएगा। तो अगर पुत्र एदी लेंथ टोटल L है, तो दिस विल बी L/2, and because this is a equilateral triangle, this is 60, so this is 30. ठीक है, now we have a relation base by hypotenuse, so L/2 by R is equal to cos 30, that is √3/2। therefore length आ गई √3 times R। और क्वेश्चन च भी पूछा जी तुमने, वो कहता जी इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब की एज सर्कल, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, तो एरिया तो लेंथ आई जाएगी। ठीक है, तो लेट अस डू नाउ सी रिलेशन कर लिया कि लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम द रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस? √g square, this is 2g is 10, g is 5, g square plus f square, and this is 6 36 minus c, आ गया रेडियस। ठीक है, सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस नाउ। हुण आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया कितना होंदा √3/4 L square, and that is given to be 27√3 आ गया। तो L square is 27 into 4, सो L आ जाएगा थोड़े को 6√3। ठीक है, यस, सो L आ गया, इत्थे प्लग कर दो।
so therefore 6 root 3 is equal to root 3 into r, और इन्हू स्क्वायर भी रहन दे सकते सी, एनीवेज हम कर लिया, ठीक है। एंड मोर ओवर सी पूछा तो आ कटेगा, स्क्वायरिंग कर दो, सो 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 36 माइनस सी, दिस गोज सी इज 25, राइट। कैलकुलेशन कर देते और भी तरीके, बट दिस इज द वे आई डिड। इज दैट क्लियर? तो जब भी किसी वेरी कॉमन क्वेश्चन दिस इज कि सर्कल के अंदर इक्वल ट्रायंगल इंस्क्राइब की है, रेडियस दी ते लेंथ दी रेशियो दसो, तो जिदा मैं दसिया उदा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ कहता कि अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, तो सर्कल का पहला सेंटर रेडियस कर लो, दिस इज -6 is 2g, g is -3, f is 4 है ना, c is -103, तो सेंटर कितना आ गया -g ते -f, रेडियस आ गया हाँ जी 9 + 16 + 103, दैट इज 25 8 to √120, ठीक है, दैट इज द रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, कहता एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया ए सर्कल, तो इतने कितने सर्कल है इदा का, सेंटर है वह -3, -4, तो कहता है कि स्क्वायर इंस्क्राइब किया जिहदियां साइड जिहड़ियां विच आर पैरेलल टू द कोआर्डिनेट एक्सिस, तो मतलब इत्थे मतलब एक्स एक्सिस है किते, तो उहदे पैरेलल आपां यू नो, बिकॉज स्क्वायर तो जिदा सर्कल च बड़े इंस्क्राइब हो सकते हैं ना, टेढ़ियां साइडां, मतलब इत्थे इत्थे इदा एक्स है, इधर वाई है, समझे गल। तो हुण इह स्क्वायर इदा इंस्क्राइब किया कि उहदियां जिहड़ियां साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू द कोआर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सो ऑलरेडी आ लाइन है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो दैट्स द मीनिंग, क्लियर। ते देन the distance of the vertex of the square which is nearest to origin, okay, तो चलो बाद की गल है, मतलब अगर हुण इहने पुछे हुण पे वर्टेक्स के कोआर्डिनेट दसो, नाउ लेट मी टेल यू कि इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इहनू देखो, लेट मी जॉइन दिस, इत्थे किते मान लो एक्स एक्सिस है, आ लाइन एक्स दे पैरेलल है, मतलब आ भी एक्स दे पैरेलल है, आ स्क्वायर है, तो जी आ डायगनल बनाई आपां, इहदा कितना एंगल होएगा 45 डिग्री है ना, क्योंकि टोटल 90 है। देयरफॉर आ जिहड़ी लाइन है, कैन यू से कि इहदी स्लोप इज 1, बिकॉज अगर इहदे नाल एंगल 45 है तो एक्स दे नाल भी तो प्रैक्टिकली एंगल 45 ही होएगा, तो स्लोप होंदी है tan ऑफ द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, सो इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन लाइक दैट, ये तुहानूं इदां ही समझ आ जाए, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, this is 45, so this is 45, therefore slope of this line is tan 45 which is 1, ठीक है। तो क्योंकि आपां हुण वर्टिसेस कढने हैं ते आई एम गोइंग टू गो टू पैरामीट्रिक फॉर्म, ते आई नीड दिस स्लोप, सो इस लाइन की स्लोप आ गई 1, तो therefore sin थीटा sin 45 1/√2 आ जाएगा। ये क्यों लिखा, बिकॉज आई नीड टू अप्लाई पैरामीट्रिक फॉर्म, वाई, बिकॉज इस पॉइंट तो ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ वर्टिसेस ਆ वाले, इन्हां दा डिस्टेंस कितना है r इज द रेडियस विच वी नो, सो x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा आ वाला वर्टेक्स आ जाएगा, एंड x1 माइनस r cos थीटा y1 माइनस r sin थीटा आ वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। सो हले आप भूल जाओ कि नियरेस्ट टू ओरिजिन करना, दैट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। अगर मैं जनरल क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो दिस द वे टू गो अबाउट, और दूजी अगर मैं आ वाले वर्टिसेस चाहिए तो हुण इस लाइन ते आ जाओ, ठीक है। सो हुण आ लाइन जिहड़ी है, क्योंकि आ एंगल इधर नूं 45 है, तो दिस एंगल विल बी हाँ जी वट 135 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इहदी स्लोप आएगी tan 135 - 1, तो पैरामीट्रिक लावांगे तो साइन ऑफ 135 कितनी होएगी 1/√2, cos 135 विल बी -1/√2, सो हुण इहदे ते पैरामीट्रिक ला दो, x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा एक आ जाएगा, r तुहानूं पता है, x1 y1 पता है, ठीक है, साइन कॉस पता है, तो एक बार प्लस लैके एक बार माइनस लैके आ दोनों वर्टिसेस थोड़े को आ जाए,
ठीक है। ਹੁਣ ਵਰਟਸਿਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ 3 -4 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ y ਹੋਏਗਾ, तो क्लोजेस्ट टू रीजन आ वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। ਇਹਦਾ डिस्टेंस चेक कर लो, ठीक है बेटे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ। एक ना होर फॉर्म ऑफ सर्कल लिख लो, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, हेडिंग ले लो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल and how to take any variable point on a circle, ठीक है। मतलब यू विल सी अगे क्वेश्चन आ चुका है कि आज ही सर्कल है, देयर इज एनी वेरिएबल पॉइंट पी ऑन द सर्कल, ठीक है, कहेगा एनी पॉइंट पी। तो हम जो लाइन च होंदा सी, इफ यू गाइस रिमेंबर, मान लो लाइन दी है x + y = 1, कहते लाइन ते कोई वेरिएबल पॉइंट लो, तो इन जनरल भी मैं थोड़ा सिखाया से की करते सी। तो लेट्स पुट x = सम वेरिएबल t, है ना, x तो t पुट कर दो और y उदी टर्म च कढ लो, वे t इज़ अ रियल नंबर, है ना, t दी अलग अलग वैल्यू रखोगे तो ये पॉइंट इस लाइन के उपर ही वेरी करेगा, वेरिएबल पॉइंट आ गया। तो ये सर्कल के उपर अगर वेरिएबल पॉइंट लेना हो तो आ मैथड कन्वीनियंट नहीं है ना, कैन यू सी के अगर मैथड लेना हो कि x² y² दैट्स इज इक्वल टू 1, लेट मी टेक अ सिंपल केस, एक्स ਨੂੰ ਮੈਂ टी ले ਲਾਂ फिर मैं स्क्वायर रूट च आएगा, तो वो क्वेश्चन ਨੂੰ सिंपलीफाई करने की बजाय ना कॉम्पलैक्स करेगा। तो सर्कल के केस अगर पूछा हो कि टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल तो किद्दां लेना है वो दस दिना मैं। तो अगर तो सर्कल बिल्कुल आ वाला है x² + y² = r², दैन लिख लो हूँ एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल कैन बी टेकन एज r cos थीटा and r sin theta, where theta belongs to 0 to 2 pi. I'll explain everything, पहला लिख लो, theta belongs to 0 to 2 pi, r is a radius which is positive, और अगर x ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, x is nothing but r cos theta and y is nothing but r sin theta। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ पैरामीट्रिक इक्वेशन कह देना सर्कल की। पैरामीट्रिक मतलब इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल, और जो पैरामीटर है या वेरिएबल है इतने थीटा पैरामीटर है, तो अगर थीटा ਨੂੰ अगर मैं इलिमीनेट करदा, ठीक है, अगर आप पैरामीटर ਨੂੰ इलिमीनेट कर दीए तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ इक्वेशन आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आ वाली। सिर्फ एलिमिनेट स्क्वायरिंग एडिंग करके x² + y² = r² आ गया। सो जब भी इन जनरल कहे ना कि दिस इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन, दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन, तो बनानी है एक दूजे तो पैरामीट्रिक तो कार्टेशियन बनाने का तरीका की है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ एलिमिनेट कर लो, सिंपल। तो जिवें इत्थे थीटा वेरिएबल है, थीटा ਨੂੰ एलिमिनेट करता ਤੁਹਾਡੇ को ਉਹਦੀ कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो आता हो गया एनी वेरिएबल पॉइंट, अगे तो जब भी लेना तो वी विल टेक लेट द पॉइंट बी r cos थीटा एंड r sin थीटा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई, दैट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन। मान लो सर्कल है, ठीक है, लेट्स से रेडियस r ते फिक्स ही है, एंगल थीटा मान लो वेरिएबल। नाउ यू नो कि दिस इज r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। सो ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀनेट कितने आ गए, r cos थीटा एंड r sin थीटा। ਹੁਣ थीटा तुसी वेरी करोगे, यार देखो थीटा इत्थे बिल्कुल इत्थे 0 आ जाएगा, तो यह वाला पॉइंट आ जाएगा। पुट थीटा इक्वल टू 0, यू विल गेट दिस पॉइंट, पुट थीटा इक्वल टू 0, cos 0 1 r आ गया, sin 0 0 आ 0, r कॉमा 0। थीटा ਨੂੰ हौले हौले ਵਧਾਓਗੇ 0 तो 10 20 40 डिग्रीज ਵਧਾ 90 करोगे ਇੱਥੇ आ जाएगा, ठीक है। सो 0 तो लैके 90 तक इस ब्रांच के पॉइंट आने, 90 तो 180 ਇੱਥੇ, 180 तो 270 ਇੱਥੇ, 27 to 360 या 2 पाई, 2 पाई तो ओपन लिया है क्योंकि 2 पाई तो 0 तो सेम पॉइंट आ गए। तो 0 तो लैके 2 पाई तक जब तुम अलग अलग एंगल्स लोगे, यू विल गेट ऑल द पॉइंट कवर्ड ऑन दैट सर्कल। तो कोई भी पॉइंट है वो करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई यूनीक वैल्यू होएगी थीटा की इस रेंज के अंदर। इज इट क्लियर? तो जब भी कहें ना टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वी कैन कन्वीनियंटली टेक r cos थीटा एंड r sin थीटा। इज इट क्लियर? एंड अगर सर्कल द सेंटर 0 0 ना हो के जनरल हो, इफ द center is let's say a comma b and radius is r, then equation की है पुत्र x minus a square b square equal to r square, then any point can be taken as a plus r cos theta
एंड बी प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, आ याद रखना। तो आ हो गया ये, क्योंकि कॉमनली तो आ यूज़ होता है, बट इन जनरल अगर जनरल सर्कल है तो आ। ठीक है, एंड यू कैन चेक आउट आ पॉइंट इनू सैटिस्फाई करेगा। इतने पुट करो एक्स नू ए प्लस आर कॉस थीटा, इतने पुट करोगे ए ना ए कट जाएगा, कितना आ गया आर कॉस थीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतने आ वाला इतने पुट करो तो कितना आ जाएगा, बी कट जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़े को आर स्क्वायर आ गया। तो फिर ये पॉइंट इस सर्कल से हमेशा लाई करेगा। थीटा अगेन 0 तो लैके 2 पाई तक सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो इनू इलस्ट्रेट मैं करदा ना एक एग्जाम्पल लैके। ओके, क्वेश्चन लिखो, मतलब मैं डिक्टेट नहीं करांदा, मैं समझा दिना है स्टेटमेंट। कहंदा एक सर्कल है, let's say x square plus y square equal to 1। तो उत्ते पॉइंट है, कहंदा कि a 1,0, b है 0,1 and p is any point on this circle। तो a कितना पुत्र 1,0 क्लियरली इत्थे आएगा, b is 0,1 ते फिर कहंदा p is any point on this circle। सो p इत्थे मूव कर रहा है किते भी। हुण एनी पॉइंट लेना है तो की लईए, बिकॉज सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, तो जनरल पॉइंट की होंदा है इहो जे ते आर कॉस थीटा, आर इज 1, सो वी कैन टेक एनी पॉइंट एज कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना, cos theta comma sin theta। So as theta changes, this point always moves on this circle। तो question is के find the locus of centroid, पहला centroid दा बाद ऑर्थोसेंटर भी कहेगा। सो दो पार्ट हो गए। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल PAB। ठीक है, एज P इज मूविंग ऑन दिस सर्कल। मतलब अगर P पॉइंट ये वेरी करे तो वी कैन सी कि ट्रायंगल है, आ भी मूव करेगी, है ना, ए भी फिक्स है बट आ P मूव करेगा तो दिस ट्रायंगल इज मूविंग। तो सो ਇਹਦਾ सेंट्रॉयड भी मूव कर रहे हैं, तो उस सेंट्रॉयड का लोकस चाहिए। तो नाउ यू नो कि तरीका की होंदा है कि ਜਿਹਦਾ लोकस चाहिए उन्होंने ਆਪਾਂ लेट्स सपोज सम पॉइंट लेट्स से H, K। ठीक है, सेंट्रॉयड आ गया। ਹੁਣ कंडीशन ला दो। तो सेंट्रॉयड हाँ जी की होंदा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, सो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 3 एंड k कितना आ गया अगेन 0 प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय 3। ठीक, तो सैकेंड होंदा कि कंडीशन लाने के बाद एलिमिनेट द वेरीएबल्स। वेरीएबल की है बेटे p च कौन वेरीएबल है थीटा, सो इसका मतलब थीटा नू आपां एलिमिनेट करा। So let's eliminate theta। So 3h minus 1 is cos theta and 3k minus 1 is sin theta। Squaring adding कर दो, sin cos eliminate हो जाने। So 3h minus 1 the square, 3k minus 1 the square equal to 1। So locus आ गया 3 अगर कॉमन कर लिए x minus 1 by 3 the whole square and y minus 1 by 3 the whole square। 3 स्क्वायर बार कितना आएगा 9, इधर भी 9 इधर नीचे आ जाओ 1 by 9 1 by 3 स्क्वायर। सो दिस द लोकस। तो वे बैक ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन जेई ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ द लोकस ऑफ P इज ऑप्शन ਸੀਗੇ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। दैट इज क्लियरली अ सर्कल। ਜਿਹਦਾ सेंटर कितना है बेटे 1 by 3 1 by 3 एंड रेडियस भी 1 by 3। ठीक है, गल समझ आ गई बेटे। तो अगर ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछे हो, है ना, सैकेंड पार्ट, तो आप ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर नहीं करना, है ना, वो तो बहुत लंबा यू नो कि अल्टीट्यूड्स कैलकुलेट करने। तो दिस इज बिट ट्रिक वन। तो वो आप की जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड ते सरकम सेंटर ये हमेशा 2:1 च हुंदा। तो ऑर्थो सेंटर का लोकस चाहिए। सो लेट दिस बी H, K। सेंट्रॉयड जिहड़ा है वो ਇਹਦੇ ਤੇ मूव करता है, वी जस्ट कैलकुलेटेड। ठीक है, या सेंट्रॉयड जिहड़ा कढ़िया सी वो रख लो कि 1 प्लस सेंट्रॉयड वाज 1 प्लस
cos थीटा बाय 3 एंड 1 प्लस sin थीटा बाय 3 है ना, ड्राइव ही कर लेने, इन्हों भूल जाओ। चलो सेंट्रोइड आ कैलकुलेट किया आप। सरकम सेंटर की है इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर, व्हाट इज सरकम सेंटर कि वो ट्रायंगल दे चों जिहड़ा सर्कल पास करदा ओहदा सेंटर एंड दैट इज क्लियरली 0,0। तो सरकम सेंटर इज फिक्स, दैट इज नॉट मूविंग, दैट इज 0 0। तो हुण लोकस चाहिए आपां नूं ऑर्थो सेंटर दा, इत्थों सैक्शन फार्मूला ला दो। हाँ जी, कितना आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच बाय 3, समझ आई गल। 2 इंटू 0 1 इंटू एच बाय 3 इज दिस 1 plus cos theta by 3 and 2 into 0 plus 1 into k by 2 plus 1 is 1 plus sin theta by 3। तो इतों sin cos एलिमिनेट कर दो, so h minus 1 square k minus 1 square is 1। so आ थोड़े को ऑर्थो सेंटर दा लोकस आ गया। ठीक है पुत्र, सो आई होप इन्ना क्लियर है। अगे तो इनू दिमाग च रखना, दिस इज़ वेरी कॉमन। टेक एनी पॉइंट तो उत्ते एच के लैन की बजाय यू कैन टेक इट लाइक दैट साइन कॉस, बाकी डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास चलते हैं।